स्वागत है। आज ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰ ਵਰਾਹ ਯਾਨੀ ਸੂਰ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੈਤਰੀय ਸਾਹਿਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਤਪਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੈਤਰੀय ਆਰਿਅਨਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, मतलब एक बहुत आदिम जी शक्ति। हाँ, पर देखो पुराणिक काल विच आके ना एक कहानी एकदम बदल गई। वराह फिर सीधे तौर ते विष्णु दे अवतार बन गए। अच्छा। हाँ जी, ते सब तो बड़ा मतलब मोड़ आया जदों राक्षस हिरण्याक्ष दी एंट्री हुई। हिरण्याक्ष, हाँ। इस नाल सारी कहानी दा फोकस बदल गया। सिर्फ सृष्टि तो हट के ये मुक्ति दी कहानी बन गई। दुनिया किवें बचाई गई, ये देखो विष्णु दी जिहड़ी पालनहार वाली भूमिका है ते उस वेले भक्ति लहर भी चल रही सी। हाँ जी, हाँ जी। उस नाल बिल्कुल मेल खांदा है एक निजी देवता जो आके बचांदा है। ते भागवत पुराण विच इसदा बहुत मतलब विस्तार नाल ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ, ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੈ। ਹਾਂ, ਦਵਾਰਪਾਲ। ਹਾਂ, ਦਵਾਰਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, 3 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ, ਮਨੁੱਖ, ਅਸੁਰ, ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਭੂਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਭੋਦਕ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਾਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੂਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਦਾਂ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਨਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਗਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਾਹ ਤੇ ਭੂਦੇਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਕਾਸੁਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਧਰਮ ਤੇ ਚਿੱਤ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਯਗ ਵਰਾਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਦਿਕ ਯਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਰ 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਦੰਦ ਯਗ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਜੀਭ ਯਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਸ਼ਾਕਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਸਾਮਵੇਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ, ਯਗ ਦਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ। ਇਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ। ਵਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਵੰਸ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਾਹ ਨੇ ਭੂਦੇਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਿਮ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਥੀਰੀਐਂਥਰੋਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੈਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਾਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਵਰਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਸਿਆ ਤੇ ਕੂਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਸਿਆ ਮੱਛੀ ਤੇ ਕੂਰਮ ਕੱਛੂਗੁੰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਤੋਂ ਬਚਾ ਮਤਸਿਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਕੂਰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਾਹ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮੱਛੀ, ਫਿਰ ਕੱਛੂ, ਫਿਰ ਥੱਲੀ ਜੀਵ। ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਯੱਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵਰਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਭੂ-ਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। आज हम विष्णु के एक बहुत ही दिलचस्प अवतार, तीसरे अवतार वराह पर बात कर रहे हैं, यानी जंगली सूर का रूप। जी, कहानी तो शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि कैसे वराह ने भूदेवी यानी जमीन की देवी को एक असुर हिरण्यकाशा से बचाया था। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास मवाद है, मजहबी मतन है, तारीख है, फन पर तहकीक है, उससे अंदाजा होता है कि इस सादा सी कहानी में भी ना कई गहरी बातें छुपी हैं। सही। तो आज हम उन्हीं, आप कह लें, परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक निजात की कहानी नहीं, बल्कि ये हिंदू फिक्र में सदियों पर फैले हुए इर्तिका को भी दिखाती है। इसका सफर आप देखें, तख्लीक के तस्वुर से शुरू होता है। अच्छा, यानी शुरू में ये विष्णु का अवतार नहीं था? ये बात तो मुझे नहीं मालूम थी। जी, जो इब्तिदाई वैदिक मतन है जैसे शतपथ ब्राह्मण, उनमें जमीन को पानी से निकालने का जो कारनामा है वो खालिक देवता प्रजापति से मंसूब किया गया था। वहाँ जोर कायनात की तख्लीक पर था। वराह का तस्वुर तो बाद में वाज़े तौर पर विष्णु से जोड़ा गया। तो फिर ये पुराणों में आके कहानी कैसे बदली? मेरा मतलब है विष्णु का अवतार बनना और फिर ये हिरण्याक्ष का किरदार शामिल होना, ये तब्दीली क्यों आई? देखिए, पुराणों के दौर तक आते आते विष्णु भक्ति की लहर काफी मजबूत हो चुकी थी। हाँ, ये तो है। तो कहानी में हिरण्याक्ष का किरदार डाला गया। वो अधर्म यानी बुराई, बदी की अलामत है। तो उसको शामिल करने से कहानी का महवर तख्लीक से हटकर निजात और धर्म की बहाली पर आ गया। अच्छा, यानी विष्णु को एक मुहाफिज, एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया गया। बिल्कुल। और महाकाव्यों में जैसे रामायण, महाभारत, हमें इस तब्दीली की हल्की सी झलक मिलती है। महाभारत में एक जगह जिक्र आता है कि विष्णु वराह रूप में जमीन को ज्यादा आबादी के बोझ से उठाते हैं। और ये हिरण्याक्ष, इसकी अपनी भी तो एक कहानी है ना? वो बस अचानक से तो नहीं आ गया था। मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ शराब वगैरह का मामला था। हाँ बिल्कुल, ये कहानी को और दिलचस्प बनाता है। भागवत पुराण में जिक्र है कि ये असल में विष्णु के दरबान थे, जया और विजया जी। उन्हें ऋषियों ने किसी बात पर नाराज होकर श्राप दे दिया था। तो विष्णु ने उन्हें एक चॉइस दी, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर गुजारो या फिर 3 जन्म मेरे ताकतवर दुश्मन बनकर गुजारो। इस तरह जल्दी वापस आ जाओगे। तो उन्होंने जल्दी वापसी के लिए दुश्मन बनना चुना और पहला जन्म था हिरण्याक्ष और उसके भाई हिरण्यकशिपु का। वाह, मतलब ये तो एक बहुत बड़े कायनाती ड्रामे का हिस्सा था। अच्छा, तो फिर असल मुकाबला कैसे हुआ? वराह का ज़हूर कैसे हुआ और भूदेवी को कैसे बचाया? कहा जाता है कि वराह पहले तो ब्रह्मा के नथने से एक बहुत छोटे से सुअर के बच्चे की तरह निकले। अच्छा। लेकिन फिर फौरन ही एक देवियाकार पहाड़ जैसी शक्ल इख्तियार कर ली। फिर उन्होंने कायनाती समुद्र में गोता लगाया, भूदेवी को ढूंढा और उन्हें अपने दांतों पर उठाकर बाहर ले आए। और वहीं फिर हिरण्याकशा से सामना हुआ? बिल्कुल उसी वक्त हिरण्याकश वहां पहुंच गया और उसने वराह का मजाक उड़ाया। उन्हें कहा कि तुम तो बस एक जंगली जानवर हो, और जंग के लिए ललकारा। जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार वराह ने उसे मार डाला। एक दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि हिरण्याकशपा ने जब ब्रह्मा से वरदान मांगा था तो हर किस्म की मखलूक से अमान मांगी थी, लेकिन शायद सूर का नाम लेना भूल गया था। हाँ, ये तो किस्मत की सितम ज़रीफी हुई। अच्छा, इस पूरी कहानी में जो अलामती पहलू हैं वो भी तो बहुत गहरे हैं। खास तौर पे ये यज्ञ वराह का तस्वुर, ये क्या है? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। यज्ञ वराह के तस्वुर में ना वराह के पूरे जिस्म को वैविक यज्ञ यानी कुर्बानी की एक मुकम्मल अलामत समझा जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे उनकी 4 टांगें, 4 वेद हैं, दांत कुर्बानी के स्तून हैं, जबान आग है, वगैरह वगैरह। इसका गहरा मतलब ये था कि विष्णु मत को कदीम वैदिक रिवायत से जोड़ा जा रहा था। एक तरह से ये दिखाया जा रहा था कि विष्णु ही कुर्बानी की असल रूह है। तो ये सिर्फ जिस्मानी निजात नहीं बल्कि कायनाती निजाम यानी धर्म, उसकी बहाली भी है। और भूदेवी खुद किस चीज की अलामत है? यकीनन हिरण्याकशा को हराना बुराई पर अच्छाई की फतह है, धर्म की बहाली है। और भूदेवी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जिंदा देवी है जिनका एहतराम और हिफाजत जरूरी है। सही। कुछ लोग तो आजकल इसे माहौलियाती पैगाम से भी जोड़ते हैं। और अगर रूहानी सतह पर देखें तो समंदर को संसार यानी दुनियावी जिंदगी समझ लें, भूदेवी को रूह, हिरण्याकशा को अहम या अहंकार, और वराह वो इलाही मदद है जो रूह को निजात दिलाती है। बहुत खूब। अच्छा, अब फन की बात करते हैं। फनकारों ने इस ताकतवर कहानी को पत्थर में कैसे ढाला? क्या कोई खास अंदाज नजर आते हैं? फन में 2 बुनियादी शक्लें ज्यादा मिलती हैं। एक तो मुकम्मल जानवर की शक्ल यानी पूरा सूर, इसे ज़ुमॉर्फिक कहते हैं। जैसे ईरान, मध्य प्रदेश में एक बहुत पुरानी और बड़ी मुतासिर कुन मूर्ति है जी। दूसरी शक्ल जो ज्यादा आम है वो है जिसमें सर सूर का और धड़ इंसान का होता है।
इसे थीरिएंथ्रोपिक या नर वराहा कहते हैं। इसमें भूदेवी को अक्सर दांतों पर या कभी कंधे पर या रान पर उठाए हुए दिखाया जाता है। क्या मुख्तलिफ अदवार के फन में अंदाज का फर्क भी नजर आता है? जी हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे गुप्त दौर की जो मूर्तियां हैं 4वीं से 6वीं सदी की उदयगिरी गुफाओं वाली, वो बहुत शाहाना, पुरवकार और साकिन सी हैं, शायद सल्तनत के इस्तेहकाम को जाहिर करती हैं। फिर जब आप चालुक्य दौर में आते हैं 6वीं से 8वीं सदी बादामी में, तो वहाँ वाराहा बहुत मुतहर्रिक, एक जंगजू के अंदाज में नजर आते हैं। आलीधा पोज कहते हैं उसे, शायद उस दौर की फौजी ताकत का इजहार हो। अच्छा। और पल्लव दौर में 7वीं सदी महाबलीपुरम में, तो वहाँ ज्यादा नजाकत है, कहानी बयान करने पर ज्यादा जोर है। और ये सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं रही, बल्कि बादशाहों ने भी इसे अपनाया एक शाही अलामत के तौर पर। यकीनन यकीनन गुप्त, चालुक्य और खास तौर पर विजयनगर सल्तनत, उन्होंने तो वाराहा को बाकायदा अपना शाही निशान यानी लॉन्चन बनाया था। चालुक्य के सिक्कों पर तो वाराहा की तस्वीर आम थी। इसकी वजह क्या थी? वजह साफ है, बादशाह खुद को जमीन के मुहाफिज के तौर पर पेश करना चाहते थे, धर्म को बहाल करने वाले जायज हुक्मरान, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाराहा ने जमीन को बचाया था। सही। और विष्णु के जो 10 अवतार हैं, दशावतार, उस फहरिस्त में वराहा का नंबर 3 है। जी, जो म्यारी फहरिस्त है उसमें मत्स्य यानी मछली और कूरम यानी कछुए के बाद वराहा का नंबर आता है। हालांकि कुछ और मतन भी हैं, जैसे भागवत पुराण, जहां अवतारों की तादाद 10 से ज्यादा 22 या 24 तक भी बताई गई है। ये फहरिस्तें भी वक्त के साथ साथ बनती रहीं और शायद मुख्तलिफ मकामी अकीदों को बड़े धारे में शामिल करने का एक तरीका थी। तो खुलासा यह है कि वराहा की कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये इलाही तहफ़्फ़ुज़, अफरा तफरी पर काबू पाने का अज़्म और कायनात में तवाज़ुन की बहाली का एक बहुत ताकतवर पैगाम है। इसमें तख्लीक, निजात, फर्ज शनासी, बहुत सी गहरी अलामतें छुपी हुई हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और आखिर में एक सोचने की बात शायद ये हो सकती है, हमारे ज़राए में ये नुक्ता भी आता है कि धर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अधर्म का खात्मा जरूरी है। ये कदीम तसव्वुर आज के दौर में क्या माने रखता है? जब हम अपने माशरे में नाइंसाफ़ी देखते हैं, बदउनवानी देखते हैं, ये इलाही मुदाखलत और इंसानी जिम्मेदारी के दरमियान किस किस्म के ताल्लुक की तरफ इशारा करता है? ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। जय श्री हरि। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी ही सागर में डूब गई थी, तब उसे किसने और कैसे बचाया था? आज हम पर्दा उठाएंगे भगवान विष्णु के उसी तीसरे महाशक्तिशाली अवतार वराह की अद्भुत गाथा से, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सृष्टि के उद्धार और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे कि कैसे भगवान ने एक सुअर का रूप धरकर इस धरती को प्रलय से बचाया था। कहानी शुरू होती है वैकुंठ में, जहां भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय 4 सनत कुमारों को द्वार पर रोकने की भूल कर बैठते हैं। क्रोधित सनत कुमारों ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। इसी श्राप से जन्मा महाभयानक असुर हिरण्याक्ष। उसने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान तो पा लिया, लेकिन अहंकार में वराह यानी सुअर का नाम लेना भूल गया। इसी वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। उसकी दुष्टता की कोई सीमा न थी। उसने पृथ्वी देवी को ही उठाकर गहरे रसातल में छिपा दिया, जिससे सृष्टि पर प्रलय का संकट आ गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटे से सुअर के रूप में प्रकट होकर वे देखते ही देखते एक विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप में आ गए। भगवान वराह ने गर्जना करते हुए महासागर में प्रवेश किया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। तभी क्रोधित हिरण्याक्ष ने उनका मार्ग रोका और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन भक्तों के रक्षक भगवान वराह ने पहले पृथ्वी देवी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया और फिर उस अभिमानी असुर का सामना करने के लिए मुड़े। दोनों महायोद्धाओं के बीच 1000 वर्षों तक ऐसा भयंकर गदा युद्ध चला कि ब्रह्मांड थर्रा उठा। अंत में भगवान वराह ने अपनी दाढ़ के एक ही प्रहार से उस महाभयानक असुर का वध कर दिया और सृष्टि को उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया और धर्म की पुनर्स्थापना की। ये कथा सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वे सृष्टि के आधार यानी धर्म को डुबो नहीं सकते। भगवान अपने भक्तों और इस पृथ्वी की रक्षा के लिए सबसे अप्रत्याशित रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री वराह जरूर लिखें। संक्षेप में, जय विजय के श्राप से जन्मे अहंकारी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबोया और भगवान विष्णु ने वराह रूप में आकर उसका वध किया और सृष्टि को बचाया। याद रखें, सच्ची भक्ति होने पर भगवान रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। मिलेंगे अगली दिव्य कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री हरि।